जी सर, आप स्टार्ट कर दें अपने। जी सर, फात आप स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी सर। वो प्रेजेंट करना था, स्टूडेंट नहीं, मतलब वो हैं तो प्रेजेंट कर दिए आप। किसी स्टूडेंट ने आज प्रेजेंट करना है? सर फिर आप कंटिन्यू कर दें। जी अस्सलाम मैम वालेकुम। नाज़िया। जी वालेकुम मैंने सलाम। कहा था कि आई विल बी प्रेजेंटिंग. सो there's actually a one problem that I want to present in today's session, and I hope that most of you, if you are a part of Code in Place, then you would be familiar with this one. But those who are not a part, I think it's very helpful for them to understand it. Yes, So you can continue. Okay. Now Ma'am Najia will present the problem, and after that we will discuss the further things if we feel that if time is left. So okay, continue, ma'am. okay, ma'am, just give me like 5 seconds. Let me present. Sure. Can you see my screen? यस मैम, Yes, ma'am. विजिबल है। Okay, sure. So basically, the problem that I want to present, the name of the problem is Mars weight conversion. So let's read the problem description and then we will move to the solution. So we need to write a program, a Python program that prompts an earthling. So basically, an earthling is a user. So the user has to enter their weight on Earth, and the program should calculate their weight, which is equivalent to their weight on Mars. So basically, we need to convert their weight on Earth to their weight on Mars. Okay, so this is the first point. The second point is that the output should be rounded to 2 decimal places when necessary. So we know that the decimal numbers, they have a multiple decimal places, but if we want to round that to 2 decimal places, we can also do that. And in order to do that, Python has a round function that can help us, right? So just a note that our weight on Earth is equivalent to 37.8% of our weight on Mars, right? So that means we need to convert this percentage value into a decimal that we will be using in our program. So let's understand three things that we need to understand before working on the solution. So there are three key stages. The first is that we need to ask the user to enter their weight using an input function. So input function Python में जब भी हमने यूजर से इनपुट लेना हो, यूजर से इनपुट लेने का मतलब है कि वो अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे इनपुट. इट्स नॉट लाइक कि हम डायरेक्टली असाइन कर रहे हैं. So in order to do that, we use the input function. Python has an input function, right? So it's a built-in function. It's not a helper or user-defined function. Secondly, once the user has entered their weight on Earth, we need to convert the weight from a string to a number, right? So we know that whatever we
we ask the user to input, it comes in the form of string by default. So basically, we will be performing a mathematical calculation. So we can't do that on a string value. So we have to convert that from a string to a number so that we can do a math with it. Okay. So we will do typecasting here. This concept is known as typecasting, where we convert the one data type to another. So converting string to a float because a weight can also be in the float form. It's not like it's only in the integer form. So converting that, we need a float conversion. So the weight, since the weight, it's not important that it's only a whole number. It can also be a decimal, as I mentioned earlier. So that is the second point. First is to take the Earthling's weight. Secondly, convert that into a float. So let's see the third point. The third point is that calculating the weights on Mars, which we do by multiplying the Earth weight by 0.378. So if you remember, what I told earlier is that हमारा जो भी वेट होता है अर्थ पर वो इक्विवेलेंट होता है 37.8% वेट ऑन मार्स के, बट हमें इस परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास ये एक कांस्टेंट आ रहा है और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने अर्थ के वेट के साथ. ठीक है. सो लेट्स डू दैट. सो आई हैव ऑलरेडी एडिट द सॉल्यूशन फॉर दिस. सो मैंने सबसे पहले जो हमारा ये परसेंटेज थी इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मार्स कांस्टेंट में, और बेसिकली ये मैंने वेरिएबल नहीं लिया, ये कांस्टेंट है. पाइथन में जब भी हम कांस्टेंट यूज करते हैं वो अपर केस में होता है, right? And second thing about constant is that its value cannot be changed in our program at any point or any area, right? So सबसे पहले मैंने उसको कन्वर्ट करके कांस्टेंट में स्टोर कर दिया है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एक्चुअल प्रोग्राम लॉजिक. So as you know that the very first point is to ask the user to enter their weight. So मैंने एक वेरिएबल लिया और उसमें मैंने स्टोर कर दिया whatever weight is entered by user. So for that I'm using an input function. और इस पर जो यूजर को शो होगा कंसोल पर वो ये होगा एंटर अ वेट ऑन अर्थ, ये मैसेज शो होगा, एंड देन आफ्टर दैट दे विल एंटर देयर वेट. सो दैट्स हाउ दिस लाइन विल वर्क. आफ्टर दैट, एज आई मेंशन्ड, हमें क्योंकि हमारे पास वेट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में आता है तो हमें उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज टाइप कास्टिंग. एंड हाउ वी कैन डू इट लाइक दिस. हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट पाइथन की तरफ से प्रोवाइडेड फंक्शन है फ्लोट, और उसमें हमने जस्ट ये वेरिएबल पास कर देना है, वो वेरिएबल जिसमें हमारे पास स्ट्रिंग की वैल्यू है, एंड दैट वाज अर्थ वेट. सो after the conversion we are again storing the result into a float earth weight. So that means now our weight is in float form. Okay. Third step. We are done with the first and second. Let's move to the third step. So the third step was कि finally अब हमने convert करना है weight. हमारे पास हमने weight भी user से पूछ लिया, उसको convert भी कर लिया. अब हमने earth weight को Mars weight के equivalent हमने calculate करना है, convert करना है. So उस conversion के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम जो हमारा अर्थ वेट है उसको मार्स कांस्टेंट के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो भी हमारे रिजल्ट आ रहा है उसको हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर मार्स वेट का वेरिएबल लिया है और यहाँ पर जो भी कन्वर्जन का रिजल्ट आया उसको स्टोर कर दिया. सो फाइनली हमारे पास जो कन्वर्जन हुई है वो इस वेरिएबल में है, एंड वी कैन जस्ट प्रिंट इट आउट anywhere we want. So मैंने प्रिंट फंक्शन लिया और इसमें मैंने मैसेज डिस्प्ले किया द इक्विवेलेंट वेट ऑन मार्स and the value of this variable. So let's run it. So for example, I am the user and I want to enter my weight on earth, for example. So for example, I will add 50. So now it has converted my weight equivalent to the Mars weight. So मेरा that means कि Mars के planet पर अगर मैं जाती हूँ for example, तो मेरा जो weight है वो 18.9 होगा. So that is what it means. So if you remember, मैंने start में एक बात कही थी कि हम लोग राउंड भी कर सकते हैं इसको, राइट? सो अभी अगर आप देखें तो लाइक ऑलरेडी मेरा वेट
18.9 आ रहा है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं इसको लेट्स सी 34 करती हूँ, और जो मार्च वेट आ रहा है वो 12.852 आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल आई वांट कि मेरे पास जस्ट दो डेसिमल प्लेसेस आए, दो डेसिमल वैल्यूज आए, आई डोंट वांट दिस थर्ड वन। सो इसके लिए एक राउंड फंक्शन है पाइथन का, और वो राउंड फंक्शन करता ये है कि जो भी आपकी फ्लोट वैल्यू होती है उसको अप टू द 2 डेसिमल प्लेसेस उसको राउंड कर देता है। ठीक है, तो आपने करना ये है कि सबसे पहले एक वेरिएबल ले लें, राउंडेड वेट, राउंडेड मार्च वेट, लेट्स डू इट। ओके, सो इसमें आपने पाइथन का जो डिफॉल्ट फंक्शन है राउंड, उसको कॉल करना है, और आपने पास क्या करना है, सबसे पहले वो वेरिएबल जिसको आपने राउंड करना है, बिकॉज हमारे पास जैसे मार्क्स का वेट था, हमने इसको राउंड करना है, राइट? तो मैं इसको पास करूंगी। अब नेक्स्ट मैं ऐड करूंगी मैं कितने डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड करना चाहती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि मैंने जस्ट 2 प्लेसेस तक राउंड करना है। सो अगेन अब मैंने इसको डिस्प्ले करना है, नॉट दिस दिस प्रीवियस वेरिएबल, because this new variable has the new value with 2 decimal places. So मैं again 34 ही एंटर करूंगी वेट, और मैं देखूंगी क्या 12.852 12.85 में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ। So let's check that. Okay, so you can now see that our Mars weight is rounded to 2 decimal values. Okay, so yeah, that is what I wanted to present. I thought this is a very helpful problem that will help you understand the concept of typecasting, the concept of conversion, and like अगर हमारा एक planet पर इतना weight है तो दूसरे planet पर कितना होगा, like Mars planet. So yeah, this was the idea. Thank you so much. थैंक यू मैम, आपने काफ़ी अच्छे से समझाया और चीज़ें मतलब क्लियर कर दी। कोई और भी प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन भी हो जो मैम ने अभी डिस्कस किया तो वो भी पूछ सकते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन या कुछ हो। Yes, please do ask. आसिफात, फिर आप कंटिन्यू कर लें जो जी नेक्स्ट टॉपिक। मैम मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? Yes, it's visible. जी। अच्छा, जो हम आजकल जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो टॉपिक से एक तो स्ट्रिंग के बारे में, दूसरे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो आज हम इन दो टॉपिक्स को देखेंगे कि स्ट्रिंग्स के अंदर हमारे पास ना कुछ मजीद कंसेप्ट आते हैं, जैसे इंडेक्सिंग का हो गया, स्लाइसिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, और जो लास्ट में हमने देखा था एफ स्ट्रिंग्स, तो हमने उसको देखना है। तो जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, यानी कि जब हम किसी कंडीशन की बेस पे अगर हमें कुछ रन करना होता है या कोड एग्जीक्यूट करना होता है, तो उस टाइम पे हमारे पास कुछ कंडीशन होते हैं, लाइक ऐसे इफ एल्स एल्स इफ। तो जब हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले हम स्लाइस स्ट्रिंग्स को देख लेते हैं। तो जो हमारे पास स्ट्रिंग्स है ना, वो होता है कोई भी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास टेक्स्ट है ना, वो एज ए स्ट्रिंग हमारे पास काउंट होती है। तो उसके अंदर जब हमने उसको अगर एक्सेस करना है ना, मतलब किसी भी पार्टिकुलर कैरेक्टर को, तो हम उसको यूज करते हैं इंडेक्सिंग के जरिए। इंडेक्सिंग में ये होता है कि आप जीरो से स्टार्ट लेते हैं इसके अंदर स्ट्रिंग्स में, पाइथन के अंदर, और ये जितने कैरेक्टर्स होंगे तब तक ये रन करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये टेक्स्ट है गीक्स फॉर गीक्स, तो ये जीरो से शुरू हो रहा है, मतलब इसका फर्स्ट इंडेक्स ये जीरो है, 0 1 2 3 4 से लेकर ना ऑनवर्ड तक। तो अगर आप ये लिखें कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग डाल के, मतलब जैसे हमारे पास स्ट्रिंग का नाम है, आगे ब्रैकेट और बीच में उसका लेटर लिख दें कि भाई कौन सा इंडेक्स नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर ये मुझे चाहिए फर्स्ट इंडेक्स जो है, अगर मैं जीरो लिखूंगा ना, तो ये मुझे ये लेटर प्रिंट करके देगा जो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर होगा। इसी तरह अगर हमें मतलब थर्ड वाला देखना है, थर्ड इंडेक्स पे क्या है, तो हमारे पास ये मतलब फोर्थ लेटर होगा। इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारे पास ना ये किस तरह काम करता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एग्जाम्पल मेरे पास कोई टेक्स्ट है,
मैंने ये चेक करना है कि इसके मतलब थर्ड लेटर या थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि तो टेक्स्ट मैंने ना ये किया कि यहाँ पे 2 डाला है। 2 का मतलब है कि जो थर्ड कैरेक्टर, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इस तरह मतलब जो थर्ड लेटर होगा ना वो हमें बताएगा कि भाई कौन सा है। इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। अभी शेयर हो रहा है मेरा दोबारा। Yes, sir. तो मैं ये बता रहा था कि इस तरह ना प्रिंट कर देगा। नीचे हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे अगर हमने ना मतलब 0 इंडेक्स पे क्या है, 5th पे क्या है, तो हम इसको रन कर लेते हैं। ये आ गया। अब इसमें ना मैंने कुछ जगह पे नेगेटिव भी लिखा है और मतलब पॉजिटिव भी है। तो पॉजिटिव होता है ना वो मतलब कि आपके पास सीक्वेंस में होता है, अगर सीधा सीक्वेंस में हम चेक करें तो उसके मुताबिक जो वैल्यू होगी ना वो प्रिंट करेगा। और माइनस का मतलब है कि रिवर्स के अंदर, मतलब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि लास्ट कैरेक्टर कौन सा है, जैसे मैंने कहा टेक्स्ट -1, तो इस टेक्स्ट का जो लास्ट लेटर है ना वो हमारे पास बनता है जी। तो वो उस जी को प्रिंट कर देगा। जब हमने इसको रन किया ना जी को, ये प्रिंट कर देगा। इसी तरह -3 लिखूंगा तो जो थर्ड वाला होगा लास्ट के अंदर, वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इसका कंसेप्ट होता है कि इंडेक्सिंग का, कि आप किसी भी वर्ड के करेक्टर को किस तरह मतलब ले सकते हैं। फिर हमारे पास आता है स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग का ये होता है कि जैसे अगर हमारे पास एक टेक्स्ट है ना, हमने ना उसको कोई मतलब कोई स्पेसिफिक पार्ट लेना है। जैसे कोई बड़ा टेक्स्ट है, मैं कहता हूँ कि ये यहाँ तक आ जाए, मतलब पहले 4 करेक्टर्स है हमारे पास, या आखिर के 3 आ जाए, तो उसमें ना हम स्लाइसिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल कोई बड़ी चीज़ है, अगर इसमें कट करता हूँ, स्लाइस करता हूँ, तो वो मतलब एक कंसेप्ट है स्लाइसिंग का। तो इस तरह हमारे पास ना स्लाइसिंग स्ट्रिंग्स है कि जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, वी आर लिविंग इन अ कंट्री नेम पाकिस्तान। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये वाला हिस्सा आए, तो मैं ना उसको लिख सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि किस तरह रन होगा। जैसे अगर हम मैं लिखते हैं कि टेक्स्ट है हमारे पास, मैंने एक टेक्स्ट लिखा है पाकिस्तान इज माई कंट्री। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना पहले जो करेक्टर है 4 मतलब वो आ जाए, तो मैं इसको करूँगा टेक्स्ट लिख के ना 3 आगे मैं कहता हूँ कि 0 से लेकर 4 तक। तो ये आपके पास ना 0 1 2 और 3 ये करेक्टर आपके पास ना ला के देगा। इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि न्यू टेक्स्ट, मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। इसने ये किया कि वो पहले वो उसको ले लेगा जो पहले करेक्टर्स हैं, फिर उनको प्रिंट कर देगा। जैसे हमारे पास ये आ गया कि PAKI, इनके उसने यहाँ से उठाया कि 0 से लेकर पहले 0 1 2 और 3, तो ये उसने ना मतलब लेके ना उसके न्यू वेरिएबल के स्टोर कर लिया न्यू टेक्स्ट के नाम से। फिर हमने उसको प्रिंट कर लिया। हम ना मतलब 3 चीजें हमारे पास होती हैं, स्टार्ट कहाँ से लेना है, उसका एंड क्या होगा, स्टेप क्या होगा। ये मतलब हमारे पास नॉर्मली सिंटैक्स होता है। अगर आप किसी एक चीज को नहीं देंगे ना तो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये नहीं करता, खाली लिखता हूँ एंड का, तो वो शुरू से लेकर एंड तक करेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखे स्टार्ट और एंड दिया ना, तो उसने इस रेंज में दिए। नीचे फिर मैंने सिर्फ स्टार्ट लिखी है, एंड नहीं लिखी। तो
सर आवाज नहीं आ रही सर, थोड़ा सा जूम भी कर दें, क्योंकि ना ये थोड़ा जूम करके ना एक दफा जल्दी से दोबारा से सारे कॉन्सेप्ट्स को रिपीट कर दीजिएगा, क्योंकि जूम भी नीट है। थोड़ा वेट कर देते हैं सर, रिकनेक्ट होते हैं तो फिर। प्रीमियम को शो हो रही है स्क्रीन में? जी सर, सर मैंने कह रही थी कि एक दफा ना एक और काम कीजिएगा कि सारा ही कॉन्सेप्ट को एक जूम कर लें, थोड़ा सा जूम करके ना जितने कॉन्सेप्ट है उसको जी। एक दफा दोबारा गो थ्रू कर दें, क्योंकि ना ये बहुत वो मैं ऑब्जर्व किया कि ये स्क्रीन मतलब बहुत छोटा है, तो जूम कर दें अगर इसको 70 तक कर चलिए दें इस, जी, क्योंकि विजिबल नहीं है ना उसमें। ये मैं कर लेती हूँ इसको। अच्छा मैडम और इसको थोड़ा थोड़ा सा जूम कर। अब ठीक है? थोड़ा सा अब भी देखें। आपने कितने तक किए जूम, थोड़ा मुझे सर बताओ, आपको विजिबल है, क्लियर विजिबल है? जी सही है, विजिबल है। सही है, ठीक है सर। फिर अब एक दफा जस्ट रिवाइज कर दें सारा थोड़ा सा ना, ताकि वो मतलब वो, क्योंकि वो पहले बहुत ज्यादा छोटा था, जूम नहीं था, अब जूम आउट होके ज्यादा सही हो जाएगा, एक दफा रिवाइज हो जाएंगे सब। जी सर ऐसा ही करें, थोड़ा रिवाइज कर देना तो ताकि किसी को भी समझने में दुश्वारी ना हो। ये अब ठीक है, इतना विजिबल है? आप जी सर, सही है। और वो एक बार जी सर स्टार्ट से रिवाइज भी करते जाएं ताकि जी मैं एक हमें फोन बता इसको। सके। ये शुरू शो हो रहा है? जी सर हो रहा है। आपका इंटरनेट का इशू हो रहा है क्या? जी सर पता नहीं बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है मतलब मीटिंग। अच्छा। जी सर। अच्छा तो हम ना इसको इंडेक्सिंग को देख रहे थे, अगर हमने किसी को लेना है तो किस तरह कैरेक्टर्स को ले सकते हैं। उसके जरिए इंडेक्सिंग का कंसेप्ट आता है कि हमने ना उसकी वैल्यू देनी है जो आपको इंडेक्स चाहिए होता है। और नॉर्मली ये स्टार्ट होता है जीरो इंडेक्स से, तो उसको जैसे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट आगे लिख के मतलब ब्रैकेट में देता हूँ 3, तो वो इस इंडेक्स वाला जो लेटर होगा ना उसको लेके आ जाएगा हमारे पास। फिर हमने जैसे एग्जांपल देखी थी हमारे पास, जैसे ये है मतलब मैं चाहता हूँ कि जो सेकंड इंडेक्स है ना वो प्रिंट हो जाए, तो हमारे पास ए प्रिंट होके आ गया था। इसी तरह कुछ मजीद एग्जांपल है हमारे पास। अगर हम देखना चाहते हैं कि रिवर्स के जरिए, तो हम माइनस लिख के ना उसकी वैल्यू लिखेंगे तो वो प्रिंट कर देगा। जैसे -1 करेंगे तो वो लास्ट प्रिंट कर देगा हमारे पास। फिर हम नीचे आते हैं, फिर हमने देखा था स्लाइसिंग का कंसेप्ट। स्लाइसिंग में ये होता है कि जैसे हमारे पास कोई टेक्स्ट है ना जो काफ़ी बड़ी है, तो हम उसको ना स्पेसिफाई करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास टेक्स्ट हो, तो हम स्लाइसिंग यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। इसमें ना हमारे पास कुछ पैरामीटर होते हैं जैसे स्टार्ट और एंड और स्टेप। अगर आप एक भी देंगे ना तो वो चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ स्टार्ट दें तो एंड तक कर लेगा,
अगर नहीं देंगे तो वो मतलब उसी तरह कर लेगा। अच्छा, नीचे कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास ना, ये वाली। अब इसमें ना मैंने मतलब मुख्तलिफ स्टेप्स किए हैं। जैसे पहले मैंने कहा है कि तुम ना 0 से स्टार्ट करो 4 तक, तो वो उसको प्रिंट करेगा। इसे मैंने मतलब स्टार्ट और एंड रेंज दी है, और इसके अंदर जस्ट मैंने स्टार्टिंग रेंज दी है और आखिर में कुछ नहीं दिया, तो मतलब वो इस कैरेक्टर से लेकर ना एंड तक जाएगा। और यहाँ पे मैंने उसे स्टार्ट नहीं दी, एंड दी है, तो मतलब ये शुरू से लेकर इस थर्ड तक जाएगा। और यहाँ पे ये है कि मैंने ना जस्ट 2 लिखे है, यानी कि ना उसे शुरू बताया ना एंड बताया है। तो वो सारा लेगा शुरू से और बीच में 2 स्टेप करता जाएगा, मतलब दो दो गैप देता जाएगा। और आखिर में ये है कि मैंने इसे कहेगा -1, यानी कि आप उल्टा रिवर्स करो इस पूरी स्ट्रिंग को। तो नीचे उसका प्रिंट हमने किया, तो ये इसका ना रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. जी। फिर हमने ना एफ स्ट्रिंग देखा था, जो हमने लास्ट में भी यूज़ किया था, कि जब हम देख रहे थे। तो इसमें ये होता है कि अगर आपने वेरिएबल और जो स्ट्रिंग्स है उसको यूज़ करना है इकट्ठे, तो अपने एफ स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब बाकी की निस्बत ईजी होता है, तो इसलिए ना हम ये करते हैं कि स्ट्रिंग वैसे की वैसे होती है, जो वेरिएबल है उसको हम ना इसे ब्रैकेट्स के अंदर डाल देते हैं। जैसे मेरे पास ये स्ट्रिंग थी, मतलब 2 वेरिएबल है, नेम और एज के, बाकी मेरे पास ये नॉर्मल टेक्स्ट है। तो मैं अगर इकट्ठे लिखने हैं ना उसको, तो वेरिएबल को मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा, और साथ में ना मतलब पहले मैं एफ लिख दूंगा, ताकि उसे आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास ये एफ स्ट्रिंग है। फिर हम इसकी को एग्जांपल देख लें। जैसे मैं कहता हूँ कि नंबर है हमारे पास ना कोई 4, मैं कहता हूँ कि प्रिंट, मैं कहता हूँ कि अगर मैं ना इस तरह करूँ तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा कि भाई अगर मैं इकट्ठे यूज करना चाहता हूँ ना, तो मैं पहले लिख दूंगा एफ, डाल दूंगा इधर कि ये एफ स्ट्रिंग होगी, और वेरिएबल को मैं इसके अंदर ब्रैकेट्स में डाल दूंगा। तो इसको हम इस तरह करें, फिर हमने इसको मतलब क्लोज कर लेते हैं। इस तरह करेंगे तो हमारे पास ना ये बिल्कुल मतलब चल जाएगा, क्योंकि इसे पता चल गया कि हमारे पास ये एफ स्ट्रिंग है, तो हमने इसको इकट्ठा यूज करना है। तो ये मतलब इस तरह हमारे पास ना प्रिंट होके आ जाएगा। तो अभी तक हमने ये देखा कि स्लाइसिंग का, इंडेक्सिंग का और एफ स्ट्रिंग का। इसके अलावा ना कुछ हमारे पास मेथड होते हैं। जैसे ना कुछ हमारे पास बिल्ट इन होते हैं, जो जैसे अगर हमने किसी लेटर को सबको छोटा करना है, लोअर का हमारे पास फंक्शन है, अपर का है। ये मतलब मुख्तलिफ फंक्शन है जो आप मुख्तलिफ टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे लोअर का है, अपर का है, स्ट्रिप होगा, ये मतलब कुछ कॉमन होते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ये काफ़ी सारे, अगर हम डिटेल देखनी है ना, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सी पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन पे लेके मिल जाएगा, जहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। ये देखें, यहाँ पे वो डिटेल ही बता रहा है कि आपने किसको किस तरह करना है। जैसे स्ट्रिंग को डिजिट के अंदर करना है, हेक्साडेसिमल के अंदर, ऑक्टा के अंदर। तो ये मतलब इस तरह होता है कि अगर आप उसको बताते हैं, वो मतलब रेलिवेंट जो होता है आपके पास यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं टेक्स्ट लिखता हूँ कि तो मैं चाहता हूँ कि ये सारा ना मतलब हमारे पास उसके अंदर है, लोअर के अंदर, मैं कहता हूँ अपर के अंदर आए। तो मैं ये कर सकता हूँ कि इसको ना स्ट्रिंग को लिख के आगे डॉट अपर फंक्शन यूज़ कर दिया मैंने, उसको फिर प्रिंट करा रहा हूँ। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये देखें, मतलब उसने सारे का सारा ना हमारे पास प्रिंट करके दे दिया है। इसी तो हमारे पास एक और फंक्शन होता है लेंथ का, जो हमारे पास काफ़ी कॉमन है। उसको देख लेते हैं कि लेंथ का फंक्शन हमारे पास, उसमें एक हमने एस लिख लें, LEN, आगे हमने बताना कि ये हमारे पास टेक्स्ट है, मतलब इस स्ट्रिंग की मुझे लेंथ बताओ। इसको प्रिंट कर देता हूँ। दोबारा दो hints। मैंने वेरिएबल का नाम डिफरेंट लिखा था, तो इसलिए वो प्रिंट नहीं कर रहा था। तो ये देखें ना, 16 बता दिए, यानी कि इसकी जो लेंथ है ना वो 16 है बनती है। अगर हम देखेंगे तो ये स्पेसिस को भी ऐड कर रहा होगा, तो इसलिए ना वो टोटल हमारे पास 16 बनती है। तो कुछ मजीद फंक्शन जैसे हमारे पास अपर क्या है, वो सबको अपर कर देगा।
इसी तरह स्ट्रिप का हमारे पास है, रिप्लेस है, स्प्लिट है। अब बाकी मुझे देख सकते हैं यहाँ पे ना क्लिक करके। तो फिर हमारे पास आता है कंकेटिनेशन का, यानी कि स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने का। तो इसमें ये होता है, अगर आप सिंपल प्लस से भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, फिर मैं बीच में प्लस करूंगा और दूसरी लिख दूं, तो दोनों को ना एक साथ कर देगा, ज्वाइन कर देगा। इसी तरह हमारे पास एक मेथड भी होता है ज्वाइन फंक्शन का, मतलब उसको कॉल करके बता सकते हैं कि भाई इसको ज्वाइन कर सक दो। फिर हमारे पास एफ स्ट्रिंग आता है, इनके डायरेक्ट मैं लिख दूं यहाँ पे, मतलब स्ट्रिंग 1 ये और स्ट्रिंग 2 ये है। सिंपल सिंपल से एग्जांपल देख लेते हैं हम ना। जैसे अगर हमने ये किया कि स्ट्रिंग 1 हेलो है और स्ट्रिंग 2 वर्ल्ड है, फिर मैं इन दोनों के दरमियान प्लस लिखूंगा ना ये, तो ये उन दोनों को प्लस कर देगा। बीच में मैंने यहाँ पे इसको रेज कर देता हूँ मैं। फिर हमारे पास सिंपल स्ट्रिंग 1 है और स्ट्रिंग 2 है। अगर मैं इसको रन करते हैं तो ये देखिए उसने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, मतलब दोनों को कंबाइन कर दिया है हमारे पास। इसी तरह आप कोई और भी टेक्स्ट ले सकते हैं जो उसको मतलब कर देगा कंबाइन। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है कि जॉइन मेथड के जरिए ये भी सेम काम ही करेगा, बस इसमें कि आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर ना पहले लिखे हमने किस से ना उसको मतलब ज्वाइन करना है। इसमें अगर मैं कहता हूँ कि ना बीच में हमारे पास आए ये एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉट ज्वाइन का फंक्शन दिया है, आगे मैंने ना स्ट्रिंग के अंदर पास कर दिए 1 और 2। जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए, मतलब उसने ना बीच में उसको कंबाइन कर दिए इस जो हमने स्पेसिफाई किया था। अगर यहाँ पे आप कुछ और लिखें, मैं कहता हूँ @ तो उसने ये कर दिया, मतलब उसने इसके जरिए ना दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह हमारे पास एफ स्ट्रिंग आता है कि जो अगर सिंपल ना अपने एफ लिखने हैं, फिर आगे उसे बताना कि ये दो वेरिएबल हैं तो उनको कंबाइन कर देगा। जैसे ये मतलब हेलो वर्ल्ड आया है, मैं इन दोनों को लिख के ना रिजल्ट के अंदर स्टोर किए, उसको फिर प्रिंट कर दिए। तो अगर यहाँ तक से कोई क्वेश्चन है कि हमने मतलब ज्वाइन वगैरह के बारे में किस तरह किए तो पूछ सकते हैं। सर क्लियर है। ओके, थैंक यू मैम। अच्छा, फिर ना हमारे पास नेक्स्ट आता है कंट्रोल फ्लो का। अब क्योंकि ये होता है कि ना हम किसी टाइम पे कंडीशन चेक करना चाहते हैं कि जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर ये हो तो ये चल जाए। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर संडे होगा तो मैं मतलब क्रिकेट खेलूंगा, अगर मंडे है तो ऑफिस जाऊंगा। तो इस तरह के ना जब कंडीशन आती है हमारे पास तो हम ना यूज़ करते हैं स्टेटमेंट्स। ये ना इसके अंदर आते हैं कंट्रोल फ्लो के, यानी कि आपका प्रोग्राम का फ्लो किस तरह होगा ये डिसाइड करते हैं कंडीशन की बेस के ऊपर। तो मेरे पास सबसे पहले आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, यानी कि इसमें ना हम कुछ चेक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ना देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई कंडीशन लगाई है इधर, तो ये जो कंडीशन है ये डिसाइड करेगा हमारा कोड क्या करेगा। मतलब कंडीशन ट्रू है ना, तो ये वाला मतलब इस तरफ जाएगा, ये वाला कोड जो होगा वो रन कर देगा। अगर हम इस तरफ आएंगे मतलब कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो रही है, तो ये कोड जो सेकंड हमारे पास कोड होगा ना, ब्लॉक ऑफ कोड, ये उसका एग्जीक्यूट कर देगा। तो मतलब हमारी कंडीशन की बेस पे ना डिसाइड हो रहा था कि हमारे प्रोग्राम ने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल सर वॉइस नहीं आ रहा। दोबारा स्टार्ट कर दूं? ये कंडीशन जो है ना वो दोबारा कर देंगे। चलिए मैं दोबारा बता दूं। सर कंडीशन का ये मैं कह रहा था कि ना हमारे पास ना कुछ, जैसे ना मैं चेक करना चाहता हूँ कोई कंडीशन है, तो ये डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरह फ्लो करेगा। तो ये कोई भी हो सकती है। इसमें कहता हूँ कि एज हमारे पास, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कुछ ऑपरेटर्स होते हैं कंपैरिजन के। इसमें मैं चेक करता हूँ फॉर एग्जांपल अगर जो हमारे पास नंबर ए है, 2 है जिसकी वैल्यू, और एक है हमारे पास ना बी जो कि हमारे पास है 1।
तो मैं ये चेक कर सकता हूँ कि ना पहले ये देखूँ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। फिर मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास ना ए बड़ा है बी से, तो तुम लिखो कि मेरे पास ए इज ग्रेटर देन बी। लेकिन अगर छोटे है ना, तुम उसे कहो कि नहीं, जो ए है ना वो छोटा है हमारे पास। तो इस तरह की ना कंडीशन को हम चेक कर सकते हैं, मुख्तलिफ लगा के, इफ लगा के या एल्स लगा के। तो हम आगे वो चेक कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक हो गया सर। अच्छा, हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं, मतलब पहले ना सिंपल देख लेते हैं। इफ का ये होता है कि अगर मैं ना कोई कंडीशन चेक करता हूँ, अगर ये हो तो तुमने ये करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इफ वेदर इज डैश कैरी डैश, यानी कि अगर आज गर्मी है तो तुमने मतलब सन ग्लासेस लेने हैं। अगर नहीं है तो कुछ नहीं होगा, मतलब खाली एम्प्टी शो करेगा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कंडीशन को। जैसे ना मैंने यहाँ पे एग्जांपल पहले नंबर वाली दी हुई है, पहले ये नंबर चेक कर लेते हैं, फिर हम नीचे देख लेंगे। मैंने ना यहाँ पे लिखा एक्स इज इक्वल टू 15, यानी कि हमारे पास एक्स 15 है। फिर मैंने क्या, अगर एक्स ग्रेटर देन 10 है, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब ये इस कंडीशन की बेस पे ना चेक कर रहे होता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, जो भी आप उसको देंगे। तो तुम ये प्रिंट कर दो एक्स ग्रेटर देन 10। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, अगर इसको रन करें तो ये बता रहा है एक्स ग्रेटर देन 10। अगर मैं इसी कंडीशन को फॉल्स कर दूं, क्योंकि मैंने ये कर दिया कि जो हमारे पास 15 है ना वो 10 और लेस से, तो क्योंकि हमें पता है ये कंडीशन सही नहीं है तो ये नहीं चलेगा हमारे पास। ये देखें, उसने मतलब खाली दे दिया, कुछ दिया ही नहीं है। तो ये अगर आप सिंपल जस्ट इफ यूज करें, हम ना ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं जो हमने ऊपर देखी है कि वेदर वाली। अब अगर मैं एक वेरिएबल ले लूं वेदर का, कि मैं कहता हूँ सनी है आज, तो अगर मैं इसको ना कंडीशन लगाऊं कि इफ वेदर इज इक्वल टू सनी, तुम प्रिंट कर दो कि हमारे पास ना प्रिंट टेक क्लासेस। हम इसको रन करते हैं अब। तो उसने बता दिया कि टेक क्लासेस, क्योंकि उसे पता है कि वेदर हमारे पास ना सनी है। अब अगर मैं यूं करूं कि वेदर को कहता हूँ कि रेनी है आज, तो फिर ये कंडीशन हमारे पास ना फॉल्स हो जाएगी। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये उसने कुछ प्रिंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने पहले चेक किया कि वेदर की वैल्यू रेनी है। अब क्योंकि यहाँ पे रेनी आ रहा है, यहाँ पे सनी आ रहा है, तो मैच ही नहीं कर रहे, तो इसलिए उसने ये इसके अंदर गया ही नहीं है। वो नीचे आ गया हमारे पास कोड, जो कि आगे कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास ये था खाली इफ के बारे में। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं एल्स के बारे में, मतलब अगर ये वाली कंडीशन ना हो तो फिर क्या हो। फिर हम नीचे देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल है अब हमारे पास। तो हमने अब दो लगा दिए कि अगर आपके पास सूरज है ना, तब तो आपने कैप लेनी है। लेकिन अगर सूरज नहीं है तो फिर आप ना ये करो कि अम्ब्रेला ले लो। तो अब दो ही कंडीशन है, अगर पहली नहीं है तो दूसरी चलेगी, दूसरी नहीं है तो फिर पहली चलेगी। तो ये हमने ना यहाँ पे पहले नंबर्स वाली एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम नीचे देख लेंगे। ये देखें, फिर मैं इसको रन करता हूँ, तो अब यहाँ पे आ रहा है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। क्यों? क्योंकि पहले मैंने लिखा है कि एक्स इज इक्वल टू 5, नीचे मैंने लगाया कि 5 ग्रेटर देन 10, क्योंकि ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। पहले वो इसको चेक करेगा, नहीं है कंडीशन फॉल्स है, तो फिर आएगा इसके अंदर, तो ये यहाँ पे ना ये प्रिंट कर देगा एल्स वाली। इसी तरह अगर हम ये करते कि अगर हम ये करते हैं, इसको कर देते हैं एक्स इक्वल टू लेस देन 10, अब ये कंडीशन हो गया ट्रू, तो अब ये वाला इसको प्रिंट करेगा वो। तो ये देखें, उसने इसको प्रिंट कर दिया है एक्स ग्रेटर देन 10। हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं नीचे ना, फिर हम चेक कर लेते हैं। मैंने ना यहाँ पे लिखा है वेदर इज इक्वल टू रेनी, नीचे लिखा है इफ वेदर इज सनी प्रिंट टेक ग्लासेस। एल्स मैं कहता हूँ कि प्रिंट कहता हूँ अम्ब्रेला। तो अब देखते हैं वो क्या कहते हैं हमारे पास ना। इसको प्रिंट किया तो उसने कह दिया अम्ब्रेला। क्यों? क्योंकि उसने पहले चेक किया कि क्या वो सनी था वेदर, नहीं था, क्योंकि ऊपर हमने ट्रेनी डिक्लेयर कर दी है। तो ये पहले इसको देखेगा, ये नहीं है,
तो ये इसके अंदर हमारे पास ना आ जाएगा ये वाली कंडीशन के अंदर। तो इसने इसको प्रिंट कर दिया है। ये नॉर्मली होता है अगर हमारे पास ना दो कंडीशन है, मतलब अगर पहले नहीं है तो दूसरी ट्रू हो ही होगी, तो ये तब मतलब हम यूज करते हैं इफ एल्स का। यहाँ तक क्लियर है? Yes. जी। हमारे पास ना नेक्स्ट आता है इफ एल्स। इसको हम एल्स भी कहते हैं, मतलब हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, इनके 4 5 3, तो हम उधर यूज कर सकते हैं। इसकी पहले डिस्कशन देख लेते हैं कि हमारे पास ना किस तरह एग्जांपल किस तरह हमारे पास। तो ये देखिए, जैसे हमने ना यहाँ पे पहले समझे चेक कर रहे हैं कि वेदर किस तरह का है। उसके पास 3 4 ऑप्शन है, मतलब सनी भी है, रेनी है, या खाली मतलब क्लाउडी हो सकता है, या मतलब कुछ और हो सकता है। तो ये ना उसकी बेस पे चेक करे, जो कंडीशन ट्रू होगी ना मतलब उसने वैसी ड्रेसिंग करके जाना है। तो इधर हम ना एल्स इफ यूज करते हैं, एलिफ जिसको हम शॉर्ट के अंदर बोलते हैं, ये नहीं कि ELIF। अब पहले पहले ना वो इसको चेक करेगा, ये ठीक है तो इसको रन करेगा, अगर नहीं है ना तो नेक्स्ट पे आएगा। इसी तरह इसको भी देखेगा, फिर नेक्स्ट को आएगा, फिर नेक्स्ट को आएगा, मतलब जो रेलिवेंट होगा ना उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कोई भी नहीं है, फर्ज किया कि इनमें से कोई नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली एल्स के अंदर जाके ना ये प्रिंट कर देगा। तो ये हमारे पास कंसेप्चुअल ओवरव्यू था। नीचे हम देख लेते हैं कोड को। तो जैसे मैंने नंबर प्रिंट किया x = 5। अब मतलब 3 तरह यूजिंग किए। एक तो मैंने कहा ग्रेटर देन 10 है, या =5 है, या कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको देखूं तो इसने कह दिया x = 5। इनके पहले उसने ये चेक किया क्योंकि ये छोटा था, तो उसने कहा नहीं। फिर वो यहाँ पे आया है, उसने कहा हाँ बिल्कुल कि दोनों इक्वल है ना, तो उसने इसको प्रिंट कर दिया है। इसी तरह फिर हमारे पास नेक्स्ट का आता है एल्स का। फिर हम इसको यूं करें कि इसको ना कुछ और कर देता हूँ मैं, मतलब 2 कर देता हूँ। तो रन करें तो अब उसने कह रहा है कि x <<5। इनके पहले उसने ये चेक किया, ये कंडीशन ट्रू नहीं थी, तो उसने नेक्स्ट चेक किया, वो भी नहीं थी, तो उसने फिर नेक्स्ट देखा कि हाँ वाकई में ये है। तो इस तरह हमारे पास ना इफ एल्स का कंसेप्ट आता है। अगर यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है तो। So, सर क्लियर है। जी। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है कि किस तरह ना वर्क करते हैं। तो मैं इसको जरा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दिया कि द कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट इज इवेल्युएटेड, मतलब पहले वो कंडीशन चेक होगी इफ वाली। अगर तो वो ट्रू है तो उसके अंदर जो कोड होगा ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो ना एल्स के अंदर चला जाएगा, उसको फिर चेक करेगा। अगर वो ट्रू है ना तो उसको चला देगा। अगर मतलब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो हमारे पास जो एल्स के अंदर कोड होगा ना उसको चला देगा हमारे पास। तो हम एक काम कर लेते हैं कि एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई ना, उसको फिर ट्राई कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि फेयर के बारे में लेते हैं कि अगर जिस बंदे की जितनी एज है ना तो उसके मुताबिक डिसाइड करेगा उसके फेयर क्या होगा। मैं कहता हूँ कि अगर ना उसकी एज है हमारे पास, अगर 5 से 10 साल है, 5 to 10 है, तो उसको देगा 20। और अगर एज है 11 से 20 तो 30 प्लस तो 50। हम ना ये काम कर रहे हैं कि 3 ना कंडीशन लगा दिए हैं। अब हम चेक करते हैं उस बेस पे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं हमने करना है क्या। हमने ना समझे कि हमने यूज़र की एज लेनी है, इसको चेक करना है। फिर हम बताएंगे टोटल जो हमारे पास अमाउंट बनती है ना जो पे करेगा वो कितनी होगी। तो इसको हम जरा कोड के अंदर देख लेते हैं कि सबसे पहले कहता हूँ कि यूज़र इनपुट, मतलब यूज़र की एज में जैसे लूंगा ना, मैं कहता हूँ कि यूज़र एज इनपुट इंटर योर एज। अपना फॉर एग्जांपल एक कोई यूज़र है, उसने ना कोई भी एंटर कर दिया है। कहता हूँ कि एज को ना पहले मैं स्ट्रिंग में ले इसके इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि एज कितने, मैं कहता हूँ 22। तो मतलब उसने ना 22 यहाँ पर स्टोर कर दी होगी। इसको हम प्रिंट कर लेते हैं कि
यूजर एज कितनी है। अब मैंने ना 45 लिखा था तो 45 आ गया। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कंडीशन को। फिर मैं कहता हूँ कि यूजर एज लेस देन 10 and age 5 and मैंने यहाँ पे ये कहा है कि इसमें दो कंडीशन चेक कर रहा हूँ। अगर तो मैं कह रहा हूँ कि यूजर की एज 10 साल से कम हो और 5 से मतलब बड़ी हो, यानी कि इसके बीच में हो, 5 से 10 के बीच में, तो आपने उसको ये प्रिंट करना है। अब मैं कहता हूँ कि अगर उसकी 11 से 20 के बीच में ना, तो तुम लिख दो 30। तो हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे ना एलिफ लिखता हूँ, एलिफ। मैं यहाँ पे उसे कह के 11 से मतलब ज्यादा हो और लेस हो 20 से, तो तुमने प्रिंट कर देना है 30। इसी तरह हम उसे कहते हैं कि अगर ये नहीं है तो आप ऐसे करो कि आप प्रिंट कर दो अमाउंट 50। तो अब ये देखते हैं कि हमारे पास ना क्या प्रिंट करता है, क्योंकि हमने उसको ऊपर जो एज दी थी ना वो थी 45। तो ये देखिए उसने ना ये हमारे पास प्रिंट कर दिया 50। तो ये इसलिए आया क्योंकि ना वो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है ना ये वाली हो रही है, तो वो खुद ब खुद ना ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। अब इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि 8 years, तब उसने कह दिया कि अमाउंट 20 है। तो इसी तरह ना कंडीशन की बेस पे अपना प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं, और वो उस कंडीशन की बेस पे चेक करेगा कि कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जी। तो हमारा आज का ना मतलब ये था कि हमने स्ट्रिंग को देखना था और ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखना था। जो इसके अंदर हमने ये मतलब टॉपिक्स का इंडेक्सिंग के, स्लाइसिंग के और कंडीशनल मतलब इफ एल्स का है, तो हमारे पास ना ये था आज का। जी सर। सर थैंक यू। फिर हम लोग एंड करते हैं मीटिंग को। ऑलमोस्ट वी आर यस मैम। क्लोज टू, तथा हम लोग फिर एंड करते हैं मीटिंग को। थैंक यू सर। आज का जितना भी हम लोगों ने कवर किया, अगर कोई कंफ्यूजन या कुछ हो तो वो हम फिर इसको डिस्कस कर सकते हैं मंडे के लेक्चर में। जी बिल्कुल मैम। थैंक यू सर, मेहताब सर। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। माफी चलिए मैं सर। मीटिंग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज।